Shalom. We bring greetings in Jesus' name. शलोम हम यीशु के नाम से अभिवादन को लाते हैं। We are treating a very important topic, and that important topic is overcoming stress. हम महत्वपूर्ण टॉपिक को देख रहे हैं और टॉपिक का नाम है तनाव पर हावी हो जाना। We are learning from the life of Jesus, हम यीशु मसीह के जीवन से सीख रहे who हैं successfully overcame stress. जो तनाव पर सफलपूर्वक हावी हुए। What made him to be so successful? और क्यों यीशु मसीह सफल रहे? Because he based his ministry on the 8 important stress busting principles. क्योंकि उन्होंने अपनी सेवकाई को 8 सिद्धांतों पर जो तनाव को तितर बितर कर देता है उन सिद्धांतों पर आधारित किया। Even as we do the same thing, जैसे हम भी ऐसा करते हैं, we will be successfully able to overcome stress. हम जो है सफल पूर्वक तनाव पर हावी हो We पाएंगे। already seen 4 parts to this series हमने इस श्रृंखला के 4 भाग को देख लिया है। and learned 5 principles. हमने 5 सिद्धांतों को सीख लिया है। Let's quickly recap on them. जल्द से हम देख लेते हैं कि ये 5 सिद्धांत क्या है। Number 1, it's a must for you to know who you are. और पहला सिद्धांत, आपको जानना जरूरी है कि आप कौन है। Number 2, it's a must for you to understand whom you're pleasing. और दूसरा सिद्धांत, ये जानना बहुत जरूरी है कि आप किसको प्रसन्न कर रहे हैं। Number 3, you must know what you come to accomplish. तीसरा सिद्धांत, आपको ये जान लेना है कि आप क्या हासिल करने के लिए आए हैं। Fourthly, we must to make prayer a habit. और चौथा सिद्धांत, हमने प्रार्थना को एक आदत बना लेना है। And fifthly, very importantly, we must focus one thing at a time. और पांचवा सिद्धांत, जरूरी है कि एक बारी एक चीज पर पूरा ध्यान हमने देना है। In this 5th part of this series, और इस सीरीज के 5वें भाग में let us learning something which is very, very important. हम कुछ सीख लेते हैं जो महत्वपूर्ण है। My brothers and my sisters, मेरे भाइयों मेरी the बहन, founder and the senior pastor of Life Church said something very beautiful. फाउंडर और वरिष्ठ पासवान लाइफ चर्च के, उन्होंने कुछ सुंदर कहा है। He said, if you delegate tasks, you create followers. अगर आप जो है जिम्मेदारियों को बांटते हैं तो लोग आपके पीछे हो लेते हैं। But if you delegate authority, you create leaders. लेकिन यदि आप जो है अधिकार को बांटते हैं तब अगुवाओं को आप बनाते हैं। My brothers and my sisters, it is very important for us to understand the power of delegation. और देखिए मेरे भाइयों मेरी बहनों, बहुत ज़रूरी है कि हम समझ ले, सीख ले कि जब हम जिम्मेदारियों को बांटते हैं उसमें क्या सामर्थ होता है। It's a must for us to get this principle right. ये सिद्धांतों को आप समझ लीजिएगा। What is the principle? सिद्धांत क्या है? The 6th principle is do not try to do everything yourself. और छठा सिद्धांत ये है कि सब कुछ अपने आप से करने का प्रयास मत कीजिएगा। I want us to open our Bibles to Mark chapter 3 verse 13 to 15. I want us to look at it. हम चाहते हैं कि पवित्र शास्त्र में हम देखें मार्कुस की किताब 3 अध्याय 13 वाक्य से 15वें वाक्य I'm तक। reading for us in the NKJV version. It says, and he went up on the mountain and called to him those he himself wanted. And they came to him, verse 14. Then he appointed 12 that they might be with him, that he might send him out to preach, verse 15, and to have power to heal sicknesses and to cast out demons. फिर वह पहाड़ पर चढ़ गया और जिन्हें वह चाहता था उन्हें अपने पास बुला लिया और वे उसके पास चले आए। तब उसने 12 पुरुषों को नियुक्त किया कि वे उसके साथ साथ रहे और वह उन्हें भेजे कि प्रचार करे और दुष्ट आत्माओं के निकालने का अधिकार रखे। I don't know how many of us sat down to meditate upon these particular verses. हम नहीं जानते कितने लोग जो है कितने लोगों ने बैठकर इन वाक्यों पर मनन किया हुआ I है। want us to break it to see the best of it. हम चाहते हैं कि इसको तोड़कर जो है हम इसका सबसे उत्तम समझ लें। It says he went up on the mountain. लिखा हुआ है कि यीशु मसीह पहाड़ पर चढ़ गए। Listen to this, my brothers and my मेरे sisters. भाइयों मेरी बहनों सुन लीजिएगा। When you are in the valley, that the world comes and surrounds you. और जब आप तराई में होते हैं तो दुनिया आपको आके घेर लेती है। You get to the mountain top, not very many will follow you. आप पहाड़ के ऊपर चढ़ जाते हैं तो ज्यादा लोग वहाँ पे नहीं आते हैं। Why is it so? ऐसा क्यों है? To come up and meet you on the mountain, they have to pay a price. क्योंकि उनको अगर आप पहाड़ चढ़कर आपसे आकर मिलना है तो उनको
दाम चुकाना होगा। It's not easy to climb up a mountain. आसान नहीं है कि पहाड़ को कोई चढ़ ले, Many will get discouraged just the thought of climbing itself. और बहुत सारे लोग जो है हताश हो जाएंगे या निराश हो जाएंगे ये सोचते हुए कि मुझे पहाड़ चढ़ना है। Jesus wanted to know who's actually committed to him, और यीशु मसीह जानना चाहते थे कि कौन उनके प्रति वचनबद्ध है, who are his fans and who are his followers. कौन उनके फैंस है और कौन उनके फॉलोअर्स है। That's why he got to the mountaintop इसीलिए वो पहाड़ पे चढ़ गए and called to him those he himself wanted. और जिन्हें वह चाहता था उन्हें अपने पास बुला लिया। Number one, they paid a price. Those ones who came on the mountain paid a price. पहली बात, जो पहाड़ पर आए उन्होंने उस कष्ट को उठाया। Number two, those ones who came onto the mountaintop, they were his choice, not the worldly choice. और देखिए वो लोग जो पहाड़ पर आए वे लोग जो है यीशु मसीह के चुनाव थे। Jesus was not their choice, but they were the choice of Jesus Christ. उन्होंने यीशु मसीह को नहीं चुना लेकिन यीशु मसीह ने उनको चुना था। And verse 14 says, then he appointed 12 that they might be with him. तब आगे चलकर 14वें वाक्य में लिखा हुआ है, तब उसने 12 पुरुषों को नियुक्त किया कि वे उनके साथ साथ रहे, यीशु के साथ साथ रहे। Number three thing, he wanted these 12 to be with him. और तीसरी बात यहाँ पे देख लीजिएगा, वे चाहते थे कि ये 12 पुरुष उनके साथ रहे, Somebody with him 24/7. और ऐसे उनके साथ रहे मानो 24 घंटे सातों दिन, Somebody who can watch him daily. और वे ऐसा कि वो उनको जो है दिन प्रतिदिन देखे, Somebody who can learn of him every day. ऐसा कि वो उनसे सीखे हर दिन, Somebody who trusts him and somebody whom he can trust. जो उन पर भरोसा, जो यीशु पर भरोसा करते हैं और जिन पर यीशु भरोसा कर सकते थे, And most importantly, somebody who's very intimate to him. और ऐसे वो चाहते थे कि वे लोग हो उनके साथ जो उनके लिए बहुत ही नजदीकी के हो। God wants us to be intimate to him. परमेश्वर चाहते हैं कि हम उनके साथ में नजदीकी के हो। Jesus chose them यीशु मसीह ने उनको चुना and wanted them to be with him 24/7. और यीशु मसीह चाहते थे कि वे लोग जो है उनके साथ रहे। Number 4 that we see in this place, और यहाँ पे चौथी बात को जो हम देखते हैं, that he might send them out to preach. और वह उन्हें भेजे कि प्रचार करे। Hallelujah. हालेलुया। He calls you, he chooses you, and he keeps you with him so that he may send you out to preach. और देखिए वो आपको बुलाते हैं, वो आपको चुनते हैं, वो आपको अपने पास रखते हैं ताकि वो आपको बाहर भेज सकते हैं प्रचार करने के लिए। Something that he himself was doing, he wanted them to do. और जो यीशु खुद कर रहे थे, यीशु मसीह चाहते थे कि वो भी करे। This is not just giving a task, this is giving authority. ये सिर्फ जिम्मेदारी को देना नहीं है, ये अधिकार को देना है। देखिए Verse 15 says, 15वां वाक्य, and to have power to heal sicknesses. लिखा हुआ है और दुष्ट आत्माओं के निकालने का अधिकार रखे। Not just preach, केवल प्रचार न करे, back that preaching with signs and wonders. लेकिन वो प्रचार को बैकअप एक दे दे या प्रचार को जो है प्रमाण दे दे आश्चर्यजनक कामों को कर कर। He instilled his power in them. उन्होंने अपने सामर्थ को उनको दिया। I repeat, he instilled his power in them. अपने सामर्थ को उनको दिया। He infused his power into them. और उन्होंने अपने सामर्थ को उनमें डाला। And then further down it says, and to cast out demons. और दुष्ट आत्माओं को निकालने के लिए। My brothers and my sisters, मेरे भाइयों मेरी बहनों, listen to this carefully. ध्यान से सुन लीजिएगा। Jesus did not just give them the tasks. यीशु मसीह ने उनको सिर्फ जिम्मेदारी को नहीं दी, He did not appoint 12 servants उन्होंने 12 सेवकों को या दासों को नहीं रखा who वहां पे। managed the menial things of life. 12 दासों को ही नहीं चुना छोटे छोटे कामों को करने के लिए। You know, just those ones who keep the crowd away from. No, he did not do that. सिर्फ इसलिए नहीं रखा कि तुम भीड़ को जो है थोड़ा हैंडल करो या अलग रखो। He picked up the 12 so that he may delegate authority. उन्होंने 12 पुरुषों को नियुक्त किया ताकि वो जो है अधिकार को बांटे उनके साथ। He wanted leaders, not followers. वे अगुवाओं को चाहते थे, भीड़ में पीछा करने वाले लोगों को नहीं चाहते थे। Jesus understood the importance of delegation. और यीशु मसीह जानते थे कि जिम्मेदारी को बांटना इसका क्या महत्व है। Many of us don't understand the power of delegation. हमें से बहुत लोग जो है इसके सामर्थ को नहीं समझते। Why it happens so?
Because of two reasons. ऐसा क्यों होता है? दो कारणवश। Number one, perfectionism. पहला कारण जो है परफेक्शनिज्म। We think that whatever we do in our style, in our own way, to our own taste, will make us happy. हम ऐसा सोचते हैं कि हम जब करेंगे, अपने तरीके से जब करेंगे, अपने मुताबिक करेंगे, तो हम खुश हो We जाएंगे। do not want anybody else to do it. हम नहीं चाहते हैं कि कोई दूसरा कुछ करे। Instead of sitting down and teaching and training and working on people, और इसके बजाय कि हम जो है लोगों को सिखाए, उनको प्रशिक्षण दे, उनके ऊपर काम करें, we think that we ourselves can do it. हम ऐसा सोचते हैं कि हम सब कुछ कर सकते हैं। When you do that, you're thinking very small. जब हम ऐसा करते हैं, सोचते हैं, तो हम बहुत छोटा सोच रहे You're not हैं। a visionary. हम फिर दर्शन को रखने वाले जन नहीं हैं। You cannot go too far. हम बहुत लंबा नहीं जा I पाएंगे। don't know whether you heard this saying or not. हम नहीं जानते आपने इस कहावत को सुना है या If you नहीं। want to get to a certain place very quickly, अगर आप चाहते हैं कि आप किसी जगह में जल्दी से पहुंच जाए, just make sure that you go alone आप ये निश्चय कर लीजिएगा कि आप अकेले जा रहे so हो, that you can dictate the pace ताकि आप जो है गति को, जो गति आप रखना चाहते हैं रख सकते हैं and get to wherever that you want और to. पहुंच सकते हैं जहां पे आप पहुंचना चाहते But if हैं। you want to go a long way, लेकिन यदि आप लंबा जाना चाहते हैं, you have to go with many with you, तो जरूरी है कि आप लोगों को साथ में लेके so जाएं, that you may be safe, ताकि आप सुरक्षित रह पाए, that you may be sound, आप जो है ठीक ठाक रहे, that you may get to where you want to. आप जो है पहुंच जाए जहां पे आप चाहते हैं कि पहुंचे आप। Jesus understood the importance of delegation. यीशु मसीह जो है बांटने, काम के बांटने के उस सामर्थ को समझते थे। We don't understand because of our perfectionism. हम समझते नहीं है क्योंकि हम चाहते हैं कि सब कुछ हम ही करेंगे। It's okay, let's do it all by ourselves. ठीक है, हम खुद करेंगे सारी बातें। When we do that, जब हम ऐसा करते हैं, I'm telling you, we are robbing of somebody's education. और मैं आपसे कहूं कि हम जो है अगले इंसान से जो वो सीख सकता है, वो मौके को हम मानो चुरा लेते हैं। My brothers and my sisters, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, mistakes do happen. गलतियां होती हैं। Over the time that they will overcome the mistakes. समय चलते या आगे चलते जो है गलतियों में वो सुधार को लाएंगे। That is when you're raising leaders. तब जाकर जो है आप अगुवाओं को उठा रहे हैं। Next principle, अगला सिद्धांत, rather next reason why we don't delegate things. क्षमा कीजिए, अगला कारण क्यों हम जिम्मेदारियों को या अधिकार को बांटते नहीं है, देते नहीं हैं। It's because we are too insecure. ये इसलिए है क्योंकि कहीं ना कहीं हम असुरक्षिता महसूस करते हैं। Many of us fear what somebody to whom we delegate the work do better than us. और हम जो है, हमें ये भय आ जाता है कि हमने जो जिम्मेदारी या जो काम किसी के साथ में बांटा है, वो हमसे अगर बेहतर करेगा तो फिर तकलीफ होगी। That possibility kind of threatens us. और उसकी वजह से जो है ये सोच जो है हमको डरा देती है। We do not want anybody to come in our way. हम नहीं चाहते हैं कि कोई हमारे आड़े आए। We want to hog all the limelight. हम चाहते हैं कि पूरा लाइट जो है हम पर ही हो। We want all the powers in our hands. हम चाहते हैं कि सारा सामर्थ जो है हमारे हाथ में। We want to be the final say. हम चाहते हैं कि जो हम कहे बस वैसा ही होना Let चाहिए। me tell you this. मैं आपसे कहूँ, When you do that, जब हम ऐसा करते हैं you will not accomplish much. तो ज्यादा हम हासिल नहीं कर पाएंगे, Because a single person cannot do all things at a time. क्योंकि एक अकेला व्यक्ति जो है सब कुछ एक समय में नहीं कर सकता You will है। be defocused. हमारा ध्यान जो है भटक सकता है You will be under tremendous stress. और बहुत तनाव होगा। What you have to do, you will not do. और जो आपको करना है आप नहीं करोगे। What others can do, you are not allowing them to do. जो दूसरे कर सकते हैं उसको करने का मौका आप नहीं दे रहे हैं। You will take every responsibility upon आप yourself. जो है सब कुछ, सारा जिम्मेदारी अपने पर ले लेते हैं In the bargain, और इसके दरमियान you will come under tremendous stress. आप पर बहुत ज्यादा तनाव होगा। Today, many of us are suffering that. हम में से बहुतों के जीवन में ऐसा हो रहा We है। wonder why this is happening to me. हम सोच में पड़ जाते हैं, फिर ये मेरे साथ क्यों हो रहा है। Reason is not outsiders, the reason is yourself. और देखिए, कारण बाहर के लोग नहीं है, कारण हम खुद हैं। My brothers and my मेरे sisters, भाइयों, मेरी बहनों, the next principle, this principle I want us to get it very importantly. और इस सिद्धांत को जो है आप ठीक से समझ लीजिएगा। Please don't do everything by yourself. कृपा कर कर सब कुछ अपने आप से मत करिएगा। Again, I repeat, don't do everything yourself. फिर एक बार मैं दोहराता हूँ कि अपने से ही सारी चीजों को करने का प्रयास मत कीजिएगा। Learn to delegate सीख लीजिएगा कि आप जो है बांटे काम को, so that you may be stress free, ताकि आपके जीवन में तनाव न रहे, so that you may be successful, ताकि आप सफल हो जाएं, so that you may go a long way ताकि आप लंबे तक जाएं। in the name of Jesus यीशु मसीह Christ. के नाम से। With these thoughts and minds in mind,
इन विचारों को अपने मनों में रखते हुए I want us to go into the day. हम दिन में जाएंगे। Have an awesome day. आपका अद्भुत दिन जाए। God bless you. परमेश्वर आपको आशीषित रखे। Stay blessed. आशीषित रहिएगा।